So we have to wait for 10 a.m. or we can start now. आप स्टार्ट करें, बेशक आप स्टार्ट करें. Okay, so I think I should put the recording on. It's already on. Okay. So Bismillahirrahmanirrahim. Welcome all students of the Weaving Society. How we call it as a Weaving Society? ये विविन सोसाइटी है और कुछ Yeah. गारमेंट्स के स्टूडेंट्स हैं, 20 Okay. मेंबर्स भी हैं. डॉक्टर मदीरा जब्बार हैं हमारे साथ. Okay. So we have some faculty members with us, and then we have the students of the NTU which are connected with this society, right? जी जी. Okay, so I quickly give my introduction and what I do, and then I would also like if you have given the option to the students or the audience if they want to say about themselves, if they have already some experience with the RC planes or drones or multicopters. So it would help me interacting with the audience. Otherwise, I will be talking to the screen all through this 2 hours or 1 hour, whatever time we have. Okay, so first of all, my name is Dr. Suhail Malik. I'm working as associate professor in Park Austria Fachschule. It's a new university near Islamabad. Technically, it's in Haripur. And I recently joined this university. Before this university, I was in GIK Institute. I was serving there for 5 to 6 years. So I just shifted here because I had some new plans to work on. And specifically, the drones were the thing which pulled me or pushed me towards this university. Basically, I did my bachelor's from UT Lahore back in 2004. Then I served in industry for about 5 years, where I was working with different metalworking and designing and project management. Then I thought that this is not the thing I'm made up for. So I moved to Europe for my MS and PhD. I did my PhD back in 2015, and then I joined GIK. In the teaching side, I'm teaching many different courses of mechanical and manufacturing engineering. It involves solid mechanics, it involves even materials, composite materials. That is very much relevant to you guys. Then I have taught some courses of thermo heat and thermofluids as well. But my main focus was towards multi-body dynamics and finite element analysis. So that is a computational side I was working on. And my research field is basically structural health monitoring. And when I was inspecting different structures and the advent of industry 4.0, ये जो 4.0 की इंडस्ट्री का ये जो रेवोल्यूशन आई है, इसने हमें ये चीज़ सोचने पे हमें मजबूर किया है कि हम अपने एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस को तेज़ कैसे कर सकते हैं या ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं. तो उसी सिनारियो में पहले हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कलर्स यूज़ किया करते थे, जिसमें चीज़ बनती थी हम उसको इंस्पेक्ट करके लगा देते थे, फिर एक ख़ास टाइम के बाद दोबारा उसकी इंस्पेक्शन करते थे. मॉनिटरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था. अब मॉनिटरिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो आप कंटिन्यूसली जब कोई चीज़ बनाते हो तो उसको मॉनिटर कर रहे होते हो. तो इस मॉनिटरिंग के प्रोसेसेस के अंदर मुझे कुछ ऐसी जॉब्स मिली जिसके अंदर कि आप फिजिकल सिस्टम के साथ कोई कनेक्टर या कोई सेंसर अटैच नहीं कर सकते थे, और वो आउटडोर जगह थी. तो मुझे पता चला कि ये सोल्यूशन सिर्फ ड्रोन से पॉसिबल है. सो मुझे एक एरियल व्हीकल चाहिए जिसके ऊपर वही सिस्टम लगा हुआ होगा, और मैं उस सिस्टम से उसको इंस्पेक्ट करने की कोशिश करूँगा. तो इस इंस्पेक्शन प्रोसेस के लिए मैं अपनी साथ स्क्रीन भी शेयर कर दूँ. सो इस इंस्पेक्शन प्रोसेस के साथ जो है मुझे पता चला कि जस्ट अ सेकेंड. Okay, so I hope I'm visible. The screen is visible. जी सर, विजिबल. ओके. सो जब मैं मॉनिटरिंग कर रहा था, बेसिकली एक हायर एजुकेशन कमीशन का स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट था और यूज़र था रेलवे, पाकिस्तान रेलवेज. अभी पिछले महीने भी डीरेलमेंट हुई, आपको पता होगा. रेल्स जो हैं हमारे वो इतने स्टेबल नहीं है. और जब मैंने थोड़ा सा उसको स्टडी किया तो पता चला कि उनका इंस्पेक्शन प्रोसेस बहुत ज़्यादा वीक है. अब पूरे पाकिस्तान में रेल्स की डैमेज को डिटेक्ट करने के लिए 2 मशीनें हैं.
जिनको के लोग ऐसे हाथ से पकड़ के और उसके साथ साथ चलते रहते हैं, और कितने बड़े ट्रैक्स हैं, वो पूरा साल भी लगे रहते हैं तो वो ट्रैक्स को कवर नहीं कर पाते। फिर उन ट्रैक्स को इंस्पेक्ट करने के बाद, डैमेज ढूंढने के बाद उसको रिपेयर करना, उस पर डिसीजन लेना, ये तो बहुत आगे की कहानी है। वो कर भी रहे हैं, बट इट इज़ अ वेरी स्लो और बहुत ही मैनुअल प्रोसेस है। तो उसके अंदर मैंने प्रपोज किया कि वी शुड हैव सम इंस्पेक्शन सिस्टम जो कि ड्रोन्स के ऊपर लगे, और मैं पहले ही रेल इंडस्ट्री के साथ यूरोप में भी काम कर चुका था। तो दैट वाज द पॉइंट व्हेन आई केम टुवर्ड्स द ड्रोन्स, और आई स्टार्टेड वर्किंग विद जीकेएंस। जीकेएंस आर वेरी शार्प स्टूडेंट्स। उन्होंने पिछले 5 से 6 सालों में मैंने डिफरेंट फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स उनके साथ किए, और साथ ही मेरा प्रोजेक्ट भी चल रहा था। तो हमने डिफरेंट ड्रोन्स डेवलप किए, और उसमें फिर 2 कैटेगरीज फर्दर ड्रोन्स की आ जाती हैं। उसमें फिक्स्ड विंग्स भी होते हैं और मल्टी रोटर्स भी होते हैं। तो फिक्स्ड विंग वो होता है जिस तरह के हम जिन जहाज़ों पर ट्रेवल करते हैं, उनके विंग्स मूव नहीं कर रहे होते, और वो अपनी लिफ्ट के साथ उनका प्रोपेलर इस तरीके से, उनका जो प्रोपल्जन होती है इस तरीके से होती है कि वो एक दफ़ा उड़ते हैं, उसके बाद ज़्यादा लिफ्ट जो है उनके विंग्स दे रहे होते हैं उन्हें। बट ये जो मल्टी कॉप्टर्स हैं, जैसे क्वाड कॉप्टर, एक्सोकॉप्टर्स वगैरह हैं, इनकी लिफ्ट जो है वो कंटिन्यूस जो है वो थ्रस्टर्स या मोटर्स, ये जो प्रोपेलर्स होते हैं, ये दे रहे होते हैं। सो इस तरीके से मैं इस फील्ड में आया। अभी आई एम वर्किंग विद डिफरेंट कंपनीज एज अ कंसल्टेंट, जो कि कंडीशन मॉनिटरिंग एंड स्ट्रक्चर मॉनिटरिंग में भी काम कर रही हैं। लेकिन बेसिकली मैंने अपनी एक नई फर्म रजिस्टर की है, जिसकी वजह से मैं इस यूनिवर्सिटी में भी आया। यहाँ का टेक्नोलॉजी पार्क अभी जो रिसेंट गवर्नमेंट ख़त्म हुई है, उन्होंने अनाउंस किया था, और अब वो आगे चल भी रहा है। उस टेक्नोलॉजी पार्क में द फर्स्ट कंपनी रजिस्टर्ड। So, Drone Tech is the name of the company, and I am the first company to be registered in that technology park. और उसके अंदर हम डिफरेंट सर्विसेज दे रहे हैं ड्रोन्स की, जिसमें कुछ लोगों के ड्रोन्स आते हैं वो रिपेयर भी मैं करता हूँ, और कुछ ड्रोन्स हैं जो कि हमें डिमांड आती है डिफेंस से, तो बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस डिमांड आती है। उसमें वो डिफरेंट सर्वेलियंस के लिए, मैपिंग के लिए उनको ड्रोन्स चाहिए होते हैं, वो हम उनको बना के देते हैं। मेरी वसीनरी में कुछ डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको ड्रोन्स चाहिए होते हैं, तो वी मेक द ड्रोन्स फॉर देम। सो दिस इज़ माय क्विक इंट्रोडक्शन। हाँ, मेरा फ्यूचर एक प्रोजेक्ट है जो कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट मैंने लास्ट मंथ अनाउंस किया है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द फर्स्ट वन टू वर्क ऑन दैट। वो मैंने 1 साल से उस पर काम कर रहा था साइलेंटली कुछ स्टूडेंट्स के साथ मिलके, तो अब मुझे लग रहा है कि मैं उसके ऊपर काम कर सकता हूँ। दैट इज़ अर्बन एयर मोबिलिटी। कि ड्रोन्स को पहले आप यूज़ करते थे एग्रीकल्चर के लिए, फोटोग्राफी के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरी के लिए, आप चीज़ें डिलीवर करते थे एक जगह से दूसरी जगह, और इंस्पेक्शन के लिए जो मैंने बताया। बट अब वो टाइम आ गया कि आप ड्रोन्स के ऊपर ह्यूमंस को बिठा के मूव कर सकते हैं। और ऊबर के लिए ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। वो पिछले 3 से 4 बल्कि 5 साल हो गए हैं वो इस पर काम कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस ऊबर टैक्सीज विच आर बेस्ड ऑन दीज कॉप्टर्स। उसमें आप बंदे को बिठाएंगे और वो 1 से 2 माइल्स के अंदर ट्रेवल करेगा, एंड ही कैन गेट अ वेरी गुड सर्विस इन अ वेरी क्विक मैनर। वो थोड़ा सा मैं इसको फर्दर भी डिस्कशन के दौरान बात करूंगा। सो दिस इज़ माय क्विक इंट्रोडक्शन। ऑडियंस में अगर किसी का कोई एक्सपीरियंस है, या जो मेरे रिस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर्स हैं, अगर वो अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द प्रेजेंटेशन। मेरा एक क्वेश्चन है, बस ये जरा सा आप लिंक कर दें कि स्ट्रक्चर हेल्थ मॉनिटरिंग को आप ड्रोन्स के साथ कोई इसका लिंक है या नहीं है, क्लियर कर दें। अच्छा, स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग का ड्रोन्स के साथ लिंक। देखें, ड्रोन एक प्लेटफॉर्म है। ड्रोन एक प्लेटफॉर्म है। इसकी सादा सी मिसाल ये है, जैसे गाड़ी है, आप उसके ऊपर आइसक्रीम भी बेचते हैं, उसके ऊपर लोग बर्गर भी बेच रहे होते हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ भी होती है। उसी के ऊपर आप गन्स लगा के डिफेंस के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म है ना। इसी तरह जहाज़ भी है, जो आपका कमर्शियल जहाज़ है, उस पर हम ट्रैवलिंग भी करते हैं, कार्गो प्लेन भी है, उसके अंदर एम्बुलेंस भी होती है, बहुत कुछ आप कर रहे होते हैं उसके ऊपर। तो ड्रोन्स भी हैं, ये एक प्लेटफॉर्म है। आपको जो चीज़ भी आपके दस्तरस में नहीं है, आप अगर उसको वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं, या ऑटोमेट करना चाहते हैं, खुद से चलाना चाहते हैं, या जिस चीज़ के नीचे रोड अवेलेबल नहीं है, उस पे चलाना चाहते हैं, ये 3-4 इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आप उस जगह पे ड्रोन यूज़ कर सकते हैं। जैसे रेल ट्रैक्स थे, उसमें एक प्रॉब्लम था कि जी ट्रेन आती है तो आपको इंस्पेक्शन सिस्टम उतारना पड़ता है। वो फिर क्या करते थे, ट्रैक को ही बंद कर देते थे। अब गरीब आवाम 2-2 3-3 घंटे ट्रेन रुकी हुई है और वो इंस्पेक्शन जारी है ट्रैक की। जब वो एक हिस्सा कर लेंगे
तो जब तक वो हिस्सा नहीं करेंगे ट्रेन ट्रैक्स बंद हो जाएंगे। बट ये जो ड्रोन है ये रेल्स की इंस्पेक्शन भी कर रहा होगा। जैसे ही ट्रेन आएगी इसके अंदर सेंसर लगे होंगे, ये ऊपर उड़ जाएगा, और जैसे ही ये ऊपर उड़ेगा ट्रेन गुजर जाएगी, फिर जब गुजर जाएगी इट विल कम बैक टू रिज्यूम इट्स इंस्पेक्शन प्रोसेस। तो स्ट्रक्चर मॉनिटरिंग जो है वो एक आपका कंटिन्यूस इंस्पेक्शन है, और ड्रोन से उसको आसान कर सकते हैं आप, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगी। आई होप आंसर इज द क्वेश्चन इज क्लियर। जी कोई और? अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कर सकता है, मैं उसका माइक अलाउ कर दूंगा तो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, आप कंटिन्यू करें। ओके जी, चलें अब हम बिस्मिल्लाह करते हैं। आज की हमारी जो प्रेजेंटेशन है, ये जो डिस्कशन है, मैं इसको इंटरेक्टिव करने की कोशिश करूंगा, इसीलिए नॉर्मली क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड पे होते हैं, लेकिन मैंने लोगों को ईजअप करने के लिए, थोड़ा सा बात खोलने के लिए उसको स्टार्ट में किया, ताकि लोग अगर कुछ बोलना चाहें या कुछ कहना चाहें तो वो कंफर्टेबल जोन में आ जाएं। आज हम 3 हिस्सों के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले मैं फ्लाइट थ्योरी के ऊपर थोड़ी सी बात करूंगा, काफ़ी लोगों को इसका पता भी होगा बट मैं उसको रिपीट भी कर रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि ये जो हमारे एयरियल व्हीकल्स है ये उड़ते किस तरीके से इनके अंदर ये फोर्सेस आती हैं कि ये हवा में उड़ना शुरू कर देते हैं। उसमें मैं फोर्सेस की बात करूंगा, एरोफाइल को थोड़ा सा क्विकली बता दूंगा, फिर उसके अंदर जो प्रोपेलर्स खास तौर पे, बाकी और प्रोपल्जन के भी मेथड्स होते हैं लेकिन जो पर होते हैं घूमने वाले उनकी मैं ज़्यादा बात करूंगा, उसी के ऊपर हमारी सारी ये एरियल व्हीकल्स चल रही हैं। उसमें फिर हम 2 कैटेगरीज को देख रहे हैं, आरसी प्लेन्स को जो कि रिमोट कंट्रोल प्लेन्स होते हैं, मल्टीकॉप्टर्स होते हैं, ये दूसरा हिस्सा होगा। इसमें मैं इनका थोड़ा सा फ़र्क बता दूंगा, इनको डिज़ाइन करने के लिए क्या क्या चीज़ें आप देखते हैं, इनकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये सारे के सारे उड़ने के लिए जो पावर चीज़ कर रही होती है वो मोटर्स होती हैं, तो हम मोटर्स के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, मोटर्स किस तरह की होती हैं, उसके अंदर कौन सी वाली मोटर्स हैं जो कि इनके अंदर यूज़ की जाती हैं, और उस मोटर को सेलेक्ट किया किस तरीके से किया जाता है। और फिर उसके बाद जो उसके कंट्रोलर्स हैं, मैंने एज सच कंट्रोलर्स को ज़्यादा उसके अंदर स्पेसिफिकली फोकस नहीं किया, बट स्टिल मैं थोड़ी सी उसके ऊपर बात कर दूंगा कि मोटर्स किस तरीके से काम कर रही होती हैं, और क्वाडकॉप्टर किस तरीके से कंट्रोल होता है कि वो अपने डिफरेंट मोशंस, रोल या और जो पिच है वो सारी इसकी सारी मूवमेंट्स दे रहा होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जब जहाज़ में हम उड़ते रहते हैं तो ये सबसे सिंपल सी 4 फोर्सेस हैं जो आपको जहन में रखनी है, जो राइट साइड की फिगर में नज़र आ रही हैं। ये 4 फोर्सेस में से 2 फोर्सेस नेगेटिव होती हैं टिपिकली हमारे लिए, यानी हमने उनको ओवरकम करना होता है, और 2 फोर्सेस हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं। सो सबसे पहली ड्रैग फोर्स है जो आपको ये टॉप पे नज़र भी आ रही है। सो ये जो फोर्स है, ड्रैग जो फोर्स है, ये आपकी फ्रंट के ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो आपकी ड्रैग फोर्स है। तो जहाज़ों के अंदर फ्रंट के ऊपर एयर जो पड़ रही होती है, आप गाड़ी चलाते हुए शीशा खोलें या आप साइकिल चलाते हुए या मोटरसाइकिल चलाते हुए, जो आपको फ्रंट पे एयर की रेजिस्टेंस होती है वो आपके मूवमेंट को रोक रही होती है। और रोड के ऊपर भी चलते हुए भी जब आप 40 टू 60 क्रॉस करते हैं तो आपकी रोड की फ्रिक्शन कम रह जाती है, एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है। तो जितनी ज़्यादा स्पीड होती जाती है आपकी एयर की ड्रैग जो है वो बढ़ती जाती है, और जहाज़ों में यही ड्रैग फोर्स है जो नेगेटिव फोर्स होता है, हमने इसको ओवरकम करना होता है। फिक्स्ड विंग्स में या जिनके जहाज़ों के फिक्स्ड विंग इस तरीके से लगे हुए होते हैं, उनके अंदर इसी ड्रैग फोर्स को एडवांटेज के में कन्वर्ट कर दिया जाता है यूजिंग एरोफॉयल। तो उसके अंदर हवा इस तरीके से मूव करती है कि यही ड्रैग पार्टली लिफ्ट में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि नेक्स्ट फोर्स होगी, मैं भी बात करूंगा। लेकिन एक और नेगेटिव फोर्स है, वो हमारा वेट है, वजन है। वजन हमेशा ग्रेविटी की सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ जा रहा है, इसको भी हमने ओवरकम करना होता है। सो वेट और ड्रैग, यानी ड्रैग इज द फ्रंट रेजिस्टेंस ऑफ एयर एंड वेट इज द फिजिकल जो वेट है आपका, जो कि ग्रेविटी की वजह से है, जो केजीज में है। ये दो वो वेट चीज फोर्सेज हैं जिनको हमने ओवर करना है। अगर आपने वेट को ओवरकम कर लिया तो चीज़ हवा में मुअल्लिक हो जाएगी, और अगर आपने ड्रैग को ओवरकम कर लिया तो चीज़ आगे मूव करना शुरू कर देगी। वो चीज़ हमारे एरोप्लेन्स हैं। सो अगर आप इस एरोप्लेन को आगे मूव करना चाहते हैं तो ड्रैग को ओवरकम करना है। इसको ओवरकम करने के लिए जो फोर्स जनरेट की जाती है वो थ्रस्ट है। सो थ्रस्ट जब आएगी तो वो ड्रैग को ओवरकम करेगी। अगर थ्रस्ट की वैल्यू, अगर फोर्सेस की बात करें न्यूटन्स में है, तो अगर वो न्यूटन्स थ्रस्ट के ड्रैग के न्यूटन से ज़्यादा हैं तो जहाज़ आगे मूव करेगा। थ्रस्ट के न्यूटन्स ड्रैग से कम है तो वो नीचे गिरने की कोशिश करेगा या पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है। और वेट के लिए ये है कि वेट और के अपोजिट जो फोर्स है वो लिफ्ट है।
So, अगर वेट और लिफ्ट दोनों इक्वल फोर्सेस हैं तो जहाज वहीं रुक जाएगा, और अगर वेट ज़्यादा है, लिफ्ट थोड़ी है, तो जहाज नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देगा। अगर बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं है तो वेट जो ये जहाज है ये फ्री फॉल करने की कोशिश करेगा। हाँ, जिसके फिक्स विंग्स लगे हुए होंगे उसके अंदर ग्लाइडिंग की अपॉर्चुनिटीज होती है, उसकी हम जो ड्रैग फोर्स है उसको लिफ्ट में पार्टली कंट्रोल कर लेते हैं, जिसको एरोडायनामिक फोर्स कहते हैं। तो वो जहाज सीधा नहीं गिरता बल्कि ग्लाइड करके गिरता है, उसको एक डिस्टेंस चाहिए होती है जिसके बाद वो नीचे गिर जाता है। बट ये 4 फोर्सेज हैं जो कि हमारे एरोडायनामिक्स में हेल्प कर रही होंगी। सो हमने अगर किसी चीज़ को हवा में उड़ाना है तो वी हैव टू जनरेट थ्रस्ट एंड लिफ्ट। थ्रस्ट उसको आगे लेके जाएगी, लिफ्ट उसको ऊपर लेके जाएगी। अब फिक्स्ड विंग्स के अंदर राइट और लेफ्ट दो विंग्स होते हैं। ये मैं आगे भी बात करूंगा। राइट को हमेशा स्टारपोर्ट कहते हैं और लेफ्ट को पोर्ट बोलते हैं, क्योंकि राइट और लेफ्ट हमेशा से यही सवाल किया जाता है। आपके सामने एक बंदा आ जाए, आपको कहे राइट हो जाए, अब वो आप राइट होंगे, वो उसका लेफ्ट है। तो ये हमेशा एक कन्फ्यूजन रहती है। इसको कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एरोस्पेस सिस्टम्स के अंदर जो राइट साइड होती है उसको स्टारबोर्ड कहते हैं, और राइट डिफाइन होती है पायलट के ऊपर। सो पायलट के अंदर आप बैठ जाएं, पायलट की सीट के ऊपर, और फिर जो आपके राइट साइड पे चीज़ आएगी उसको स्टारबोर्ड कहा जाएगा, जो आपके लेफ्ट पे आएगी उसको पोर्ट कहा जाएगा, और फिर जो आपके सामने होगी उसको फ्रंट या नोज कहा जाएगा, और जो आपके पीछे आएगी वो आफ्ट या रियर होगी। इसलिए इस लिहाज से चीज़ों को, तो अगर आप फिक्स विंग को देखा जाए तो उनकी स्टारबोर्ड और पोर्ट के अंदर डिफरेंट विंग्स होते हैं। उनकी दोनों विंग्स की लिफ्ट जो है अगर उसको डिसबैलेंस कर दिया जाए तो जहाज़ मुड़ना शुरू कर देगा, और थ्रस्ट भी दे दी जाए तो वो एक साइड से बढ़ाई जाए दूसरी तरफ की जाए तो जहाज़ एक तरफ मुड़ेगा, और अगर उसको अपोजिट किया जाए तो जहाज़ दूसरी तरफ मुड़ेगा। जहाज़ के इस मुड़ने को एरोडायनामिक्स की ज़बान में यॉ कहते हैं। तो कोई एयर व्हीकल जब मुड़ती है तो वो यॉ करती है। सो वो मुड़ के फिर आप थ्रस्ट देते हो तो वो आगे मूव करना शुरू करता है। ओके, इसके अलावा हमें कुछ बेसिक टर्म्स का भी पता होनी चाहिए एरियल व्हीकल की 4 फोर्सेस के बाद, कि जब आप बात करते हो तो आप टेक्निकल टर्म्स उस जगह का नाम लेते हो तो अगले बंदे को पता लग जाता है ये क्या है। ये कुछ जर्नल मैंने एक कर्टिस नासा की वेबसाइट से उठाई थी। इसमें आप देख सकते हो जो फ्रंट पे है ये प्रोपेलर है, इसको जो अंदर लगा हुआ है ये स्पिनर है। स्पिनर इज आल्सो कॉल्ड एज मोटर। सो मोटर या स्पिनर, क्यों मोटर इसलिए नहीं कहा हुआ, स्पिनर इसलिए कहा है कि कई दफ़ा ये इलेक्ट्रिक मोटर नहीं होती, ये पीछे जनरेटर लगा हुआ होता है, उससे रोटेशन मिल रही होती है, सॉरी पावर्ड होती, नॉट पावर्ड बाय इलेक्ट्रिकल होती है, कई दफ़ा ये इंजन से या फ्यूल से भी पावर्ड होती है, टरबाइन से भी पावर्ड होती है, इसलिए इसको स्पिनर कहा गया। हम जो है अपनी आज की डिस्कशन वो सिर्फ मोटर्स तक महदूद रखेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर्स तक महदूद रखेंगे, लेकिन जनरली इसको स्पिनर कहते हैं। प्रोपेलर वो पंखा है जो कि हवा आगे से चलने की वजह से आगे से पुश पुल खींचता है और पीछे की तरफ फेंकता है। ठीक है, जब वो पीछे की तरफ फेंकता है तो न्यूटन के थर्ड लॉ की वजह से प्रोपेलर आगे को मूव करता है। सो ये जहाज के अंदर थ्रस्ट क्रिएट होती है जो कि फॉरवर्ड फोर्स है। इस तरीके से ये ड्रैग को कम करने की कोशिश करता है। ये जो साइड के ऊपर खुले हुए स्ट्रक्चर्स हैं ये विंग है। बेसिकली ये वो स्ट्रक्चर हैं जो कि किसी भी फिक्स्ड विंग वाले जहाज को स्टेबल करके रखते हैं। ऊपर ये कॉकपिट है। अगर आपका अनमैन्ड एरियल व्हीकल होगा जिसको यूएवी बोलते हैं उसमें कॉकपिट नहीं होगा क्योंकि उसमें आप कोई बंदा नहीं बैठेगा। लेकिन अगर वो एरियल व्हीकल अनमैन्ड नहीं है, मैन्ड है, तो उसमें कॉकपिट होगा जिसमें एक बंदा बैठा होगा। ये फ्यूजलाज है, विंग्स जिस चीज़ के ऊपर, और सारे के सारे स्ट्रक्चर्स जहाज के लगे हुए होते हैं, स्पिनर, प्रोपेलर, विंग, जो ये लंबा सबसे स्ट्रक्चर होता है इसको फ्यूजलाज बोलते हैं। ये फ्रंट से तो स्ट्रीमलाइन नहीं होता, सर्कल नज़र आ रहा होता है, लेकिन अगर टॉप से और साइड से देखें तो ये भी एक एरोफाइल की शक्ल ही लेगा। एक सादा मिसाल एरोफाइल की, पानी का कतरा आ गया, थोड़ा सा हम डिस्कस भी करेंगे। जिस तरीके से वाटर ड्रॉप जो है वो कहीं से गिरे तो जो शेप वाटर ड्रॉप लेता है, अल्लाह ताला की तरफ से फ्लूइड में वो प्रॉपर्टी है कि वो शेप लेता है जो कि उसकी एयर मूवमेंट सबसे अच्छी बना दे। सो जो फ्लूइड के एक ड्रॉप की, जो पानी के कतरे की शेप है, वही एरोडायनामिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिबल है, इसलिए वो शेप की साइड से भी देखें या टॉप से भी देखें तो आपको यही शेप मिलेगी। और विंग का क्रॉस सेक्शन भी देखें साइड से, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से, स्टारबोर्ड से या पोर्ट से, तो वो भी आपको एक जो है वो वाटर का जो ड्रॉप है वो नज़र आएगा, ड्रॉपलेट नज़र आएगा। चाहिए ये विंग्स हो गए, ये आपके लिफ्ट जनरेट करते हैं, कॉकपिट हो गया। फिर इस इन विंग्स के अंदर जो इसकी विंग्स की लिफ्टिंग की कैपेसिटी है उसको चेंज करने के लिए इस विंग को फर्दर हिस्सों में डिवाइड कर दिए जाते हैं, फ्लैप्स और एलरॉन्स में। कुछ जो है वो टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त यूज़ किए जाते हैं, कुछ सिर्फ इसकी मनूवरिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। सो फ्लैप्स एंड एलरॉन्स दोनों मिल के इसकी यॉ रोल पिच को कंट्रोल करते हैं। पीछे ये टेल है,
पूरा हिस्सा जो है। टेल इसकी स्टेबिलिटी के लिए यूज की जाती है। यॉ जब ये कर रहा होता है, जब ये टर्न कर रहा होता है, तो टेल अगर ना हो तो ये स्टॉल कर जाएगा, गिर जाएगा। सो टेल इसको फर्दर स्टेबिलिटी देती है। इसके साथ छोटे छोटे विंग्स लगे होते हैं जिनको विंगलेट्स बोलते हैं, और इन्हीं विंगलेट्स को ये जो पीछे कंट्रोल सर्फेसेज हैं, बेसिकली जितने भी ये आपको लाइट डार्क ब्लू नजर आ रहे हैं, फ्लैप्स, एलरॉन्स, एलिवेटर्स, और फिर ऊपर अभी रडर की भी बात करूंगा, इनको कंट्रोल सरफेसेस कहते हैं। ये वो सरफेसेस होते हैं जो कि एरोडायनामिक्स को, एयर फोर्सेस को चेंज करते हुए आपके जहाज को कंट्रोल करते हैं, या रोल या पिच वगैरह को यही कंट्रोल करते हैं। और आखिर में ये रडर है, ये भी टर्निंग के लिए यूज किया जाता है। सो कंट्रोल सरफेसेस में रडर बाकी कंट्रोल सरफेसेस का साथ मिल के तो आपकी यॉ को कंट्रोल करता है। सो बेसिकली ये सारे कंट्रोल सरफेसेस हो गए, ये टेल हो गई, ये फ्यूजलाज हो गया, स्पिनर, प्रोपेलर। सो देयर आर मैनी, और भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं, लेकिन जनरली यही नाम है। कुछ और भी आप लोगों ने सुने हुए होंगे, लेकिन बहरहाल मोटर और स्पिनर की बात करें, इसके ऊपर मैं फर्दर डिस्कशन करूंगा कि मोटर किस तरीके से डिफाइन करनी है जब हम क्वाडकॉप्टर्स और आरसी प्लेन्स की डिजाइनिंग की बात करेंगे। प्रोपेलर्स का मैंने पहले भी बताया था, इट इज़ द यूनिट जो कि आपको थ्रस्ट जनरेट करने के लिए यूज़ कर रहा है, ये स्पिनर के ऊपर लगा हुआ होगा। विंग जो है, जैसे मैंने पहले बताया, विंग जो है वो आपकी लिफ्ट क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। विंग्स की और प्रॉपर्टीज़ होती हैं बहुत सारी, वो मैं थोड़ी सी और बताने की कोशिश करूँगा आगे एक छोटी सी स्लाइड में। फ्यूजलाज जो है उसके अंदर नॉर्मली आपने अपना पेलोड रखा होता है, सबसे ज़्यादा वेट इधर होता है, आपकी सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसी के अंदर होती है, और ये सारी प्रॉपर्टीज फ्यूजलाज। इसके अलावा फ्यूल अगर आपने भरना है, फ्यूल इसके अंदर होगा, आपकी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स इसके अंदर होगी, कार्गो इसके अंदर होगा, पेलोड सारा का सारा इसी में होगा। ये जितनी भी आपके वेट्स होते हैं जो कि आपने जहाज़ के ऊपर रखे होते हैं, उन्हें कलेक्टिवली पेलोड कहा जाता है। सो आप लोगों के लिए एक छोटी सी मैंने एक एक्टिविटी भी रखी थी। ये आप अगर अपने लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स या डेस्कटॉप के ऊपर ये वेबसाइट खोलें, liveworksheets.com, लिंक भी दे सकता था लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने यही किया हुआ है, liveworksheets.com, और स्लैश में ये आप लिख दें BU755659OP, यानी कोई ज़्यादा 10 डिजिट्स का ये कोड है। सो liveworksheets.com पे स्लैश लिख के अगर आप ये देखें तो इट इज़ अ इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, जिसके अंदर एक एरोप्लेन आपके सामने है, एयर अमेरिका का नज़र आ रहा है, और आप इस वेबसाइट पे जाएं और ये वाली वर्कशीट नज़र आएगी आपको। आप लेबल कर सकते हैं जहाज़ के डिफरेंट पार्ट्स को। सो लेट्स डू इट। इसके अंदर ये 5-10 पार्ट्स लिखे हुए हैं और एरोज बने हुए हैं, तो आपको जो लगता है कि कौन सा पार्ट कौन सा है, आप उसके ऊपर ड्रैग, कुछ मैंने अभी बताए हैं, कुछ जो हैं वो इंटुइटिवली आपको देखने पड़ेंगे। सो liveworksheets.com/BU755659OP, ये वेबसाइट अक्सर थोड़ा सा से अपलोड होने दीजिएगा जब आपको हैंड वाला टूल नज़र आए, जो कि यानी पिकिंग के लिए यूज़ हो, तब आप इसको पिक्चर को यूज़ कीजिएगा। पहले ये थोड़ा सा अपलोड होने के लिए टाइम लेगा। These are 10 parts. कॉकपिट है, फ्लैप्स हैं, फिन है, एग्जिट है। ये एग्जिट दरवाजे की बात कर रहा है, जहाज में बैठे तो जो एक एग्जिट दरवाजा होता है। एलरॉन है, विंग है, फ्यूजलॉज है, इंजन है, रडर है, एलिवेटर है। कंटिन्यू करें आप वो, ये लिंक वर्क नहीं कर रहा, टैग नहीं हो रहा, आप कंटिन्यू करें। नहीं, अपलोड नहीं हो रहा। किसी का अपलोड नहीं हुआ? हो रहा, बेसिक चैट्स अलाउड है लोगों को? ये लाउड है। ओके, मैंने सो एनीवन जिसने अगर चैट पे किया मोबाइल, हो। मोबाइल्स पे हैं तो मेरा नहीं। अच्छा, कुछ मोबाइल पे भी है, ठीक ठीक ठीक, राइट राइट, ओके। बहरहाल इफ यू विल गो देयर तो यू विल फाइंड दैट। पहली दफ़ा मेरे भी 7 नंबर ही आए थे, मैंने वो 1-2 गलतियां कर दी थी। तो बहरहाल दीज आर डिफरेंट पार्ट्स। इंजन है, कॉकपिट है, फ्यूजलाज है, विंग है, फिन है, रडर है, एलिवेटर है, ये एग्जिट है, ये फ्लैप्स है, ये।
So these are different parts. अच्छा, after understanding these parts of the जहाज, अब हम बात करते हैं कि विंग क्या ड्रामा करता है, क्या साइंस है इसके अंदर कि ये जहाज हवा में उड़ना शुरू कर देता है। So ये एक विंग का पोस्टमार्टम हुआ है, थोड़ा सा खुला हुआ है ये विंग, इसकी एनाटॉमी नजर आ रही है। ये कमर्शियल जहाज का विंग है जो हम आरसी प्लेन्स के विंग्स देखते हैं, जिसको रिमोट कंट्रोल प्लेन कहते हैं। उसके अंदर फ्यूल टैंक नहीं होता, लेकिन अब जो बड़े जहाज आ रहे हैं उनके विंग्स के अंदर फ्यूल भी डाला जाता है। और ये जो पीछे वाले जो कंट्रोल सरफेसेस हैं, ये अंदर वाला विंग फ्लैप होता है, बाहर वाला एलरॉन होता है। ये इसके मैनूवर्स के लिए और रोल पिच के लिए हेल्प करता है। और ये स्पार जो है, ये अलोंग द लेंथ ऑफ द जो मेंबर होता है विंग का, उसको स्पार बोलते हैं। तो अगर किसी ने आरसी प्लेन बनाना है तो, और उसका साइज एक खास थिकनेस, वो डिपेंड करता है। हमें मार्केट से जम्बोलॉन्स की शीट्स मिलती हैं, उसके अलावा हम ग्लास फाइबर की शीट्स लेते हैं, कुछ और डेकोरेटिव शीट्स होती हैं, वो उसके ऊपर हम चढ़ा रहे होते हैं। तो ये स्पार्स और रिब्स का उसको कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और ये वो यूज करेगा। और ये जो एंड के ऊपर सर्फेसेस लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, जो कि वीक होते हैं लेकिन फिर भी उसको लेंथ दे रहे होते हैं, ये स्ट्रिंजर्स बोलते हैं इनको। सो रिब्स, स्ट्रिंजर्स और स्पार ये अंदर के स्ट्रक्चरल पार्ट्स हैं, और फिर उसके ऊपर हम स्किन लगाते हैं। स्किन यहाँ ऐसे नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये उसको कवर करके, और स्किन जो है वो स्मूथ होती है, जिससे कि सरफेस ड्रैग कम से कम होती है, रफ सरफेस नहीं होती। और ये जो बड़ी वाली साइड है जी, मेरा क्वेश्चन है कि स्ट्रेंजर पोर्शन में स्पार अब नहीं है, इसकी क्या रीजन है? क्या चीज़ क्या कह रहे हैं? स्ट्रेंजर पोर्शन जो स्ट्रिंगर पोर्शन है उसमें स्पार्स जी नहीं जी, नजर नहीं आ रहे, उसकी क्या रीजन है? स्पार्स का फंक्शन क्या है? नहीं और आप देख स्पार्स रहे जो हैं जो है, हाँ स्पार्स जो है वो टेक्निकली थोड़े से स्ट्रक्चर को बेयर, जो आपकी बेंडिंग मोमेंट्स होते हैं, खास तौर लोड्स जो होते हैं उनको कंट्रोल, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी दे रहे होते हैं। स्ट्रिंजर जो है वो कनेक्शन के लिए यूज हो रहे हैं, या आपके रिब्स को आपस में जोड़ने के लिए यूज हो रहे हैं। अच्छा डिस्टेंस भी इसमें जो है रिब्स में ज्यादा होता जा रहा है। आप देखें शुरू में किसमें, डिस्टेंस जो है वो कम, रिब्स जो है रिब्स उसमें हाँ मैं डिस्टेंस वो कितना बताता हूँ, कम मैं है। वही बताता हाँ मैं वो बताता हूँ। उसमें यूं है कि देखें, विंग जो है इसकी क्रॉस सेक्शन का जो साइज होता है, एरिया होता है, ये कंटिन्यूसली चेंज होता है। सो विंग की 3-4 प्रॉपर्टीज हैं, जिसको कि आप टिप रेशो कहते हैं, इसको एस्पेक्ट रेशो भी एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है, और इसके अलावा इसके कैमर और उसके रेशियोज होते हैं। सो ये 3-4 प्रॉपर्टीज हैं जो कि विंग की शेप को डिफाइन करती हैं। अब जो विंग है, इसकी टिप रेशो का मतलब ये है कि एंड पे जहां ये लगा हुआ है और जहां से ये फ्री है, इन दोनों के दरमियान रेशो कितना है। अगर ये टिप रेशो सेम होगा तो इसका मतलब ये है कि आखिर से शुरू तक बिल्कुल सेम एरिया रहा है। अब टिप रेशो के साथ आपकी हर एरोफाइल की, जब मैं एरोफाइल की बात करूंगा तो बताऊंगा कि एरोफाइल किस तरीके से आपको लिफ्ट दे रहा होता है। तो जिस तरीके से ये एरोफाइल्स अपनी क्रॉस सेक्शन को चेंज कर रहे हैं, इसी तरीके से इनकी लिफ्ट की और ड्रैग की फोर्सेस चेंज हो रही हैं। सो टिप अभी एक रिसेंट, बल्कि नेक्स्ट मंथ आईबी कास्ट में हमारी एक कॉन्फ्रेंस में हमने इसके ऊपर एक स्टडी भी की है। हमारे पास एक स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन का विंग आया था जिसका टिप रेशो 1 था, यानी टिप और जो उसकी बेस है उन दोनों के दरमियान सेम एरिया था। उसको हम चेंज जैसे जैसे करते जा रहे थे, उसकी लेटरल स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही थी। लेकिन एक खास रेशो के बाद एक क्रिटिकल रेशो होता है, क्रिटिकल रेशो में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाती है। उसके बाद अगर आप उससे कम करें तो फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में उसकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, वो स्टॉल करना शुरू कर देते हैं। होता है बेसिकली इसके यही पीछे यही है कि आपकी जो थ्रस्ट और लिफ्ट की फोर्सेस हैं वो डिसबैलेंस होना शुरू हो जाती हैं। और ये फोर्स पिन पॉइंट फोर्स नहीं होती, ये पूरा एरिया होता है। तो इसको टेस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले एनालिटिकल इक्वेशंस तो आप यूज करते हो, लेकिन एनालिटिकल इक्वेशंस मल्टीवेरिएट होने की वजह से आपको एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं दे पाती। फिर आप क्या करते हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एरिया है, तो फिर आप कोई ना कोई CFD का सॉफ्टवेयर यूज करते हो। उसके अंदर विंग्स की नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन जो है वो यूज की जाती है, फ्लूइड डायनामिक्स की, और उसको आपके सारे के इस एरिया, विंग के अराउंड के एरिया को मैश किया जाता है, और एक एक पोर्शन के, छोटे छोटे पोर्शन के ऊपर फोर्सेस को देखा जाता है कि वो कितनी लिफ्ट जनरेट कर रहे हैं, कितनी ड्रैग है, और कितनी थ्रस्ट है, और कितना वेट है। सारी फोर्सेस के कॉम्बिनेशन को देख रहे होते हैं। नॉर्मली CFD में हम वेट को कई दफ़ा इग्नोर भी कर देते हैं, ताकि सिर्फ और सिर्फ हमें थ्रस्ट और ड्रैग का लिफ्ट के साथ पता चल रहा हो। अच्छा, उसके बाद क्या किया जाता है
कि जब CFD करते हो तो फिर आपको फील होता है कि कौन कौन सी जगह, अच्छा होता यूं है, एरोफाइल की जब मैं बात करूंगा तो बताऊंगा कि प्रेशर ड्रॉप्स किस तरीके से होते हैं। तो फिर ये जो है एक एक एरोफाइल अपना अपना रोल प्ले कर रहा होता है। एक एक ये जो क्रॉस सेक्शन है, ये छोटा छोटा रिब्स नजर आ रहे हैं, हर रिब जो है ये एरोफाइल का है, की शेप का है। और इसके अंदर जो होल्स बने हुए हैं, जो सुराख बने हुए हैं, ये कोशिश ये की जा रही है कि वेट कम से कम हो। और स्पार्स नॉर्मली आपकी फ्यूजलाज के साथ कनेक्टेड होते हैं, वो स्ट्रक्चरल पार्ट होता है, वेट उनका ज्यादा होता है, वो स्ट्रेंथ के लिए यूज किए जाते हैं। स्ट्रिंजर जो है वो सिर्फ कनेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, वो लाइट वेट होते हैं। और कोशिश ये की जाती है कि जैसे जैसे आपका वेट विंग से दूर जा रहा हो तो वेट कम से कम हो। सो टिप रेशो का ये भी फायदा है कि जब आप विंग से दूर हो जाएंगे तो आपका वॉल जो वेट डेंसिटी है वो कम हो रही है, यानी थोड़ा एरिया है तो थोड़ा वेट यूज हो रहा होगा। ठीक है, तो ये रीजंस है इसके। अच्छा, इसमें एरोफाइल को देख लेते हैं। ये जो एक रिब है ये एक एरोफाइल होगा। अब इसको देखा जाए तो इसमें दो तरह के जो प्रिंसिपल्स हैं वो काम करते हैं, जिसकी वजह से कि विंग किसी जहाज को उड़ाना शुरू कर देता है। सो बेसिकली क्या होता है कि फ्रंट से अगर कोई स्ट्रीमलाइन आ रही है हवा की, तो एरोफाइल जो है जैसे मैंने बताया ड्रॉप की शेप का होता है। अगर प्योर ड्रॉप हो, ऊपर से और नीचे से बिल्कुल सीधा हो, तो उसको हम सिमेट्रिक एरोफाइल कहते हैं। वो भी मैं थोड़ा सा अभी दिखा दूंगा। वो टर्म्स इस छोटी सी डिस्कशन में सारी की सारी तो कवर नहीं हो सकती, लेकिन मैं वो दिखा दूंगा अभी। लेकिन बहरहाल ये है कि इसमें क्या है कि आप देखें कि इसका जो टॉप वाला सरफेस है वो बड़ा है, और जो बॉटम वाला एरोफाइल का सरफेस है वो थोड़ा सा एज कंपेयर टू छोटा है। बड़े छोटे से मुराद ये है कि अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ एड इसकी लीडिंग एज के ऊपर, जो एरोफाइल की फ्रंट जगह होती है जिससे हवा आ रही होती है उसको लीडिंग एज बोलते हैं, और जो एंड पे जहाँ हवा उसको छोड़ के जा रही होती है उसको ट्रेलिंग एज बोलते हैं। सो ये जो लीडिंग एज है इसके ऊपर अगर मैं खड़ा हूँ और मुझे ट्रेलिंग एज पे जाना है तो मेरे पास दो रास्ते हैं, ऊपर से भी जा सकता हूँ, नीचे से भी जा सकता हूँ। ऊपर से जाऊंगा तो लंबा रास्ता है, नीचे से जाऊंगा तो थोड़ा रास्ता है। और अगर मैं दोनों जगहों पे एक ही टाइम पे पहुंचना चाहता हूँ तो मतलब ये होगा कि अगर ऊपर वाला रास्ता लूँ तो मुझे तेज भागना पड़ेगा, नीचे से जाऊंगा तो मैं नॉर्मल स्पीड से जा सकता हूँ। अभी एयर को इसी कॉन्सेप्ट से रिप्लेस कर दें। एयर जो ऊपर से जा रही है उसको लंबा रास्ता यूज करके लेके जाना है, और जो नीचे से जा रही है उसको छोटा रास्ता लेके जाना है, लेकिन आगे जाके सबने इकट्ठा मिलना है। इस कॉन्सेप्ट की वजह से जो तेज हवा ऊपर से गुजरेगी तो उसकी वजह से एयर पार्टिकल्स जो हैं वो ज्यादा मूव करेंगे, और नीचे जो है वही पार्टिकल्स कम स्लो मूव कर रहे होंगे, और ज्यादा मूवमेंट्स की वजह से यहाँ गैप प्रोड्यूस होगा। कह सकते हैं कॉन्सेप्चुअली कि एक वैक्यूम क्रिएट है, वैक्यूम होता नहीं है लेकिन कॉन्सेप्चुअली वैक्यूम क्रिएट होगा। और इन अदर वर्ड्स लो प्रेशर इन क्रिएट होगा, नीचे हाई प्रेशर होगा। तो इससे चक्कर क्या होगा कि जब हमें ये नेचुरली प्रोसेस है कि हमेशा कोई भी स्ट्रक्चर आप डालें तो वो अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाता है। हम हर साइंटिफिक लॉ में यही पढ़ते हैं। इवन अगर आप पोटेंशियल एनर्जी को भी देखें या MGH जो हम ग्रेविटी का लॉ भी देखते हैं कि आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाते हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली एयर फॉइल के ऊपर एक लिफ्ट फोर्स क्रिएट होगी जो कि इसको ऊपर की तरफ मूव करेगी। सो ये वन प्रोसेस है। दूसरा वजह ये है कि जब ये एयर इस एंड वाली पोर्शन पे पहुंचेगी तो एरोफाइल की ग्रेविटी या COG जो है वो तकरीबन जहां मैंने पॉइंटर रखा हुआ है यहाँ है। तो मोमेंटेरली ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो फैला हुआ है जिसका वेट मूव कर रहा है, और उसके पीछे एक फोर्स ज्यादा लग रही है, ड्रैग की फोर्स लग रही है। ये जिस जगह पे मैंने रखा है, ये जो ड्रैग फोर्स है ये इस चीज को पीछे नीचे की इसकी जो ट्रेलिंग एज है इसको नीचे की तरफ पुश करेगा, और न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से ऑटोमेटिकली ये वाला हिस्सा ऊपर की तरफ जाएगा उसको बैलेंस करने के लिए। सो ये दो लिफ्ट्स जनरेट हो रही होंगी, एक न्यूटन्स लॉ की वजह से और एक ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से, जिसको बर्नौलीज लॉ भी कहते हैं, इटालियन बर्नौलीज लॉ। सो ये जो दो लॉज हैं इनकी वजह से ये क्रिएट होगी, ये दो लिफ्ट्स क्रिएट होंगी। अब इन एरोफाइल्स को नेमिंग के लिए कि ये जी इसका कितनी नीचे वाली साइज होना चाहिए, ऊपर वाला कितना होना चाहिए, लेंथ कितनी होनी चाहिए, इनकी थिकनेसेस क्या होनी चाहिए, इसके लिए नाका प्रोफाइल्स को बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। आप हर जहाज के साथ देखें तो वो बताएंगे जी हमने कौन सा नाका प्रोफाइल यूज किया है। नाका का मतलब है नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स। ये USA की फर्म है जिन्होंने डिफरेंट एरोफाइल्स की CFD प्रॉपर्टीज उन आ रही है आपकी।
क्योंकि आवाज आ रही है।